Good morning, children. Today we will study the second part of chapter number 2, Natural Resources, Land, Soil and Water. Soil profile. Soil develops in horizontal layers. If we cut vertically into the earth, the different layers become visible. A soil profile is a sample taken from the surface down through the soil. The horizontal layers of soil are called soil horizons. Topsoil, horizon A. It is the topmost layer of the soil. This layer is rich in humus and contains rotten plants and animals. Subsoil, horizon B. Subsoil is found below the topsoil. It is made of silt, clay, sand, and some nutrients such as soluble minerals and iron oxides. Rainwater which seeps into the surface of the earth collects in this layer. Rock fragments, horizon C. This layer lies in between the subsoil and the parent bedrock. It consists of weathered rocks. Bedrock, horizon D. This is the last layer in the soil profile. It is the parent rock. It is a solid layer of unweathered rock. अब सॉइल प्रोफाइल हॉरिजेंटली लेयर को डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं। अर्थ को अगर हॉरिजेंटली डिवाइड करें तो बहुत सारे लेयर में वो डिवाइड होगा। जो सॉइल का जो हॉरिजेंटली लेयर है उसको सॉइल हॉरिजन कहते हैं। जो टॉप सॉइल हॉरिजन नंबर 1 ये सबसे ऊपर रहता है, इसलिए इसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। ह्यूमस मतलब कि डेड एनिमल प्लांट्स का। फिर सेकंड है सब सॉइल हॉरिजन नंबर बी। इस लेयर टॉप सॉइल के नीचे रहता है। इसमें सिल्ट, क्ले, सैंड और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। रेन वाटर इसमें जाके रुक जाता है, ठहर जाता है। 3 नंबर है रॉक फ्रेगमेंट्स हॉरिजन सी। इस लेयर ये सब सॉइल और पेरेंट रॉक बेड के बीच में रहता है। ये कंटेंट करता है वेदर्ड रॉक को कंटेंट करता है। लास्ट है बेड रॉक हॉरिजन डी। इसमें क्या है, ये लेयर सबसे नीचे है सॉइल प्रोफाइल का, ये पेरेंट रॉक है और ये सॉइल लेयर का अनवेदर्ड रॉक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल ऑफ इंडिया। Soils of India. India is primarily an agricultural country. It has a variety of climates, relief features, and rock structures. Due to all these features, different types of soils are found in India. Alluvial soil. It is the most widespread soil in India. It is found in the northern plains, coastal plains, and deltas of various rivers. This soil is formed due to the deposition of sediments by the rivers. It is very fertile. Black soil. It is formed from dark igneous rocks. It is found in the northwestern part of the Deccan Plateau. It is made up of fine clayey material and can hold moisture. Black soil is locally called regar. It is best suited for the cultivation of cotton and sugarcane. Red soil. The red soil is found in the southern and eastern parts of peninsular India. The red color of the soil is due to high iron content. It is not very fertile. This soil can be made fertile by regular use of organic and chemical fertilizers. Laterite soil. It is found in areas of heavy rainfall like northeast India, the western Ghats, and Chota Nagpur Plateau. In these areas, the soil undergoes a process called leaching, by which essential nutrients, salts, and minerals drain out from the soil because of heavy rains. Therefore, laterite soil is poor in fertility. Such soil can only support pastures and shrubs. Mountain soil. It is mainly found on the hill slopes covered with forests. This soil is rich in humus as it is formed due to the deposition of the organic matter. It is suitable for tea, coffee, fruits, and spice cultivation. Desert soil.
It is found in hot and semi-arid regions. It has a thick layer of sand. It is found in Rajasthan and requires regular irrigation. This soil is very porous and cannot hold water. A variety of crops can be grown in this soil with the help of irrigation. अब सॉइल ऑफ इंडिया, ये अलग अलग सॉइल इंडिया के हर जगह पे पाए जाते हैं। जैसे एल्यूवियल सॉइल, पहला सॉइल एल्यूवियल सॉइल है, ये ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है। ये नॉर्दर्न प्लेन से कोस्टल प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन और डेल्टास रिवर के किनारे पाया जाता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट रहते हैं, ये बहुत फर्टाइल रहता है। दूसरा सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल डार्क इग्नियस रॉक्स से फॉर्म होता है। ये वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। ये फाइन क्ले मटेरियल में होता है और ये मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, मतलब पानी को होल्ड कर सकता है। ब्लैक सॉइल को रेगन भी कहते हैं। और ये कल्टीवेशन, इसमें कौन से क्रॉप्स होते हैं, वो होता है कॉटन एंड शुगर कैन। तीसरा सॉइल है रेड सॉइल। रेड सॉइल सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया में पाया जाता है। ये रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा रहता है। ये उतना फर्टाइल नहीं होता है, इसमें रेगुलर इरिगेशन और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है लिटरेट सॉइल। लिटरेट सॉइल क्या है, बहुत हैवी रेनफॉल जिस एरिया में होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर, इस एरिया में ये पाया जाता है। ये एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको कहते हैं लिंचिंग। लिंचिंग में क्या होता है कि ऊपर का लेयर का न्यूट्रिएंट सब बह जाता है हैवी रेनफॉल के कारण, इसलिए ये बहुत पुअर क्वालिटी का फर्टिलिटी होती है इसमें। तो इसको ये पास्चर और श्रब्स ही उगाने के काम आता है। फिफ्थ है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल मेनली हिल स्लोप पे पाया जाता है। इसमें ये फॉरेस्ट से कवर रहता है। यहाँ पे रिच ह्यूमस पाया जाता है। ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसमें मिलती है, तो यहाँ टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स और स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं। लास्ट है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल सेमी एरिड एरिया में पाया जाता है। ये लेयर ऑफ सैंड, थिक लेयर ऑफ सैंड होता है। ये राजस्थान में पाया जाता है। इसमें यहाँ रेगुलर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत पुअर होता है, पानी को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए अगर यहाँ पे क्रॉप लगाना है तो इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। Depletion of soil fertility. The cultivation of crops depends upon the soil fertility. The removal of topsoil is called soil erosion. Due to erosion, the soil loses its fertility. Soil erosion is mainly caused by running water and wind. Deforestation, overgrazing, overutilization of land, and adoption of unscientific farming methods also cause depletion of soil fertility. अब डिप्लीकेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कैसे होता है, सॉइल इरोजन के कारण। सॉइल इरोजन कैसे हो सकता है, एक तो नेचुरल तरीके से होता है और एक अननेचुरल तरीके से जो हम लोग कर देते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, अनसाइंटिफिक फार्मिंग के तरीके से डिप्लीकेशन ऑफ सॉइल हो जाती है। Wonderful to know. Just 1 gram of soil contains 5,000 to 7,000 different species of bacteria. Soil holds 3,750 tons of water per hectare. This reduces the risk of floods. Soil conservation. The protection of soil from physical as well as chemical deterioration is called soil conservation. It includes all those measures that can protect the soil from erosion and fertility exhaustion. Farmers across the world use different methods to conserve soil and to derive optimum benefits. Some methods are given below. सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इसको फिजिकल वे में और केमिकल डिटोरेशन से बचाने के लिए करते हैं, तो इसको सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं।
मैं एक ये एक तरीका है जिससे हम लोग अब सॉइल का इरोजन और उसकी फर्टिलिटी एग्जॉस्ट होने से बचा सकते हैं। फार्मर ये लोग डिफरेंट मेथड अपनाते हैं जिससे हम सॉइल इरोजन या सॉइल कंजर्वेशन अच्छे से हो, सॉइल इरोजन ना हो और उसका कंजर्वेशन अच्छे से हो। यहाँ कुछ मेथड है। So, afforestation. It is the most effective method to conserve soil. More and more trees, shrubs and grasses should be planted and reckless cutting down of forests should be stopped. Checking the अब एफॉरेस्टेशन में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज, श्रब्स और ग्रासेस लगाने से हम लोग और कट नहीं करने से ट्रीज को हम लोग एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं और सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। overgrazing. Overgrazing by animals should be checked as the land becomes exposed to rain and wind. Fodder should be grown as a crop. ओवर ग्रेजिंग से बचाना चाहिए क्योंकि अगर सारे एनिमल्स ग्रेज कर लेंगे प्लांट्स को, छोटे पौधों को, तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे कमी आ जाएगी। इसलिए फॉडर को उनके खाने की चीज़ के लिए अलग से उगाना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग होने से बचना चाहिए। Crop rotation. The cultivation of different crops on the same piece of land each year during different times is called crop rotation. This practice adds nutrients to the soil and helps in pest control. अब सॉइल क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, हम लोग एक क्रॉप को लगातार नहीं लगा के उसको रोटेट करते हैं। ये आज इस सीजन में ये क्रॉप लगाया तो दूसरे सीजन में दूसरे क्रॉप लगाया, इससे उसकी फर्टिलिटी मेंटेन कर रहती है और ये हेल्प करता है पेस्ट कंट्रोल करने में भी। Contour blowing. In this method, the farmer blows parallel to the contour of a hill slope to form natural barrier for water to flow down from the slope. काउंटर फ्लॉगिंग, इसमें क्या करता है, फार्मर फ्लॉग से पैरेलल एक काउंटर हिल तैयार कर देता है जिससे नेचुरल बैरियर्स की तरह वो एक्ट करता है और वहाँ से वाटर फ्लो डाउन करने में फ्लो डाउन होने में बचती है, मतलब कि फ्लो डाउन नहीं हो पाती है स्लोप से। Race farming. It is very effective in conserving soil in mountainous regions. In this method, the hill slopes are cut into terraces to create flat areas to grow crops. This method reduces the speed of flowing rainwater. Strip crop. टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि अब जो फील्ड्स होती है माउंटेन एरियाज में, उसको स्टेप्स के तरफ स्टेप बाय स्टेप कट कर दिया जाता है जिससे जो स्पीड ऑफ फ्लोइंग रेन वाटर है वो स्लो हो जाए और उसको इरिगेशन प्रॉपर तरीके से मिले और फर्टिलिटी मेंटेन रहे। Cropping. It is the method in which cover crops such as small grains and grasses are planted alternatively with cultivated crops in narrow strips. These cover crops absorb the moisture and hold the surface soil together. अब स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, इस मेथड में क्रॉप के चारों तरफ ग्रासेस, ग्रेन्स, छोटे छोटे प्लांट कर दिए जाते हैं। अल्टरनेटिव कल्टीवेशन की तरह नैरो स्ट्रिप बना दी जाती है जिससे कि वो जो कवर क्रॉप है ऑब्जर्व कर लेता है मॉइस्चर और होल्ड करता है सरफेस एरिया को, सरफेस सॉइल को अच्छे तरीके से। Cover cropping. In areas such as orchards and plantations, cover crops are planted between the young trees to check soil erosion. Leguminous crops are often used as they add nitrogen to the soil. कवर क्रॉप्स क्या होते हैं, वो क्रॉप्स लगाए जाते हैं और प्लांटेशन एरियाज में ज़्यादातर। क्योंकि सॉइल इरोजन को चेक किया जा सकता है। इसमें लिग्यूमिनस क्रॉप्स ज़्यादातर लगाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर। Planting shelter beds in dry areas where wind erosion is common. Rows of trees and shrubs are planted to reduce the speed of wind to protect the soil. These rows are called
shelter belts. प्लांटेशन शेल्टर बेल्ट में क्या होता है कि जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा बहती है उस जगह क्रॉप्स के किनारे किनारे बहुत सारे ट्रीज लगा दिए जाते हैं जिससे विंड की स्पीड स्लो हो जाए और इरोजन कम हो, जिसको शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं इन रोड्स को। Rock dams. Rocks are piled up to check the flow of water and prevent soil loss by floods. Soil erosion and the falling fertility loss is a serious problem in developing countries like India. The methods for conservation of soil should be planned on scientific lines, while fertility of soil can be regained by intensive manuring using chemical fertilizers and crop rotation. अब रॉक डैम क्या होता है कि चारों तरफ फील्ड के पाइल कर दिया जाता है रॉक्स को, टुकड़ों को, और उससे क्या होता है फर्टिलिटी लॉस कम होती है, सॉइल इरोजन कम होता है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए, और इसको कंजर्व करने के लिए इनको साइंटिफिक तरीके से लाइन अप और फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए सॉइल की इनको काम करना पड़ता है, इंटेंसिव मैन्योरिंग करनी पड़ती है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ता है, क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। Water. Water is an essential renewable natural resource. About 70% of the total surface area of the earth is covered with water. Therefore, it is often called the watery planet or blue planet. About 97% of the water is found in oceans and seas. It is saline and not fit for domestic, agricultural and industrial usage. Fresh water accounts for only about 3%. About two-thirds of this fresh water remains frozen in the glaciers and ice caps. Only a small amount of Earth's water, that is 1%, is available and fit for human use. It is found as surface water in water bodies like rivers, lakes, ponds and streams, as groundwater and as water vapor in the atmosphere. Therefore, fresh water is the most precious thing on the earth. The quantity of water is fixed on the earth. It remains in motion through water cycle. Rain is the main source of fresh water. It gathers as fresh water in rivers, lakes and ponds. अब टॉपिक है वाटर। वाटर क्या है? बहुत एसेंशियल रिसोर्स है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो ज़रूरी है। 70% ऑफ अर्थ क्या है? कवर है वाटर से, और ये इसको वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसलिए 97% जो वाटर है ओशन में है और सी में है। ये जो सलाइन है और डोमेस्टिक यूज़ और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए के काम नहीं आ सकता। फ्रेश वाटर से 3% है, जिसमें से 2/3% क्या है? फ्रेश वाटर फ्रोजन है ग्लेशियर्स और कैप्स में। 1% के आसपास जो वाटर है जो ह्यूमन यूज़ करते हैं सरफेस वाटर की तरह ये मिलता है, जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, ग्राउंड वाटर वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में रहता है। और ये फ्रेश वाटर जो है बहुत प्रीशियस है अर्थ के लिए। ये वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर फिक्स है अर्थ पे, इसलिए हम लोग को हिसाब से यूज़ करना पड़ता है वाटर को। ये मोशन साइकिल में घूमते रहता है, जिसको वाटर साइकिल कहते हैं। जो वाटर साइकिल में ये वाटर का साइकिल घूमते ही रहता है। कभी फ्रोज़न होता है, कभी रेन फॉर्म में होता है। इसी तरह ये ज़्यादातर हम लोग को फ्रेश वाटर रेन फॉर्म में मिलता है, जो कि गैदर हो जाता है लेक, रिवर, पॉन्ड में। Scarcity of water, ever increasing population, rising demands for food, increasing urbanization, and rising living standards have created problem of water scarcity in many regions of the world. Most of the countries of Africa, West Asia, South Asia, Western USA,
Australia, and parts of South America are facing shortage of fresh water supply. It is estimated that by 2025, 65 countries of the world, including India, Korea, Nigeria, Peru, and Poland, will face shortage of water in the near future. The existing resources of fresh water are either drying up or getting polluted. The distribution of fresh water is highly uneven in the world. This is only because of the differences in climatic conditions. Water. स्कार्सिटी ऑफ वाटर कैसे हो सकता है? स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा राइज हो गया, फूड का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गई है। ये क्या कर रहा है? स्कार्सिटी पूरे ऑफ वाटर ये पूरे वर्ल्ड के लिए हो गया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, वहाँ पे क्या है, पानी की कमी की दिक्कत मिल रही है। 2025 में 2025 में 65 कंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पे इंडिया को इंक्लूड करके पानी की कमी की प्रॉब्लम आने वाली है। इसमें अब इसको बचाने के लिए, फ्रेश वाटर को बचाने के लिए हम लोग को उसको पॉल्यूट होने से बचाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर अनइवन है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए उसको सही तरीके से सही क्लाइमेट कंडीशन में डिफरेंट जगह डिफरेंट कैपेसिटी के हिसाब से दिया गया हुआ है। इसलिए हम लोग को इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। The resources in India. India gets plenty of rainfall during the monsoon season, but it is not evenly distributed. Some parts get flooded while other parts suffer from drought. India is an agricultural country. It requires a continuous supply of fresh water to irrigate the farmlands. After independence, the government of India undertook different multi-purpose projects like Bhakra Nangal Dam on River Satluj to make water easily available for farming and other related activities. These multi-purpose projects are called temples of modern India because they serve many purposes at the same time, like irrigation, controlling flood, generating electricity, breeding fish, and creating recreational facilities. वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इंडिया में प्लेंटी ऑफ वाटर है, रेनफॉल होता है, इसलिए प्लेंटी ऑफ वाटर है। इस सीज़न में, मानसून सीजन में, यहाँ पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मानसून का सीज़न कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, जिसके कारण कहीं फ्लड आ जाता है, कहीं पे ड्रॉट आ जाता है। तो ये इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पे कंटिन्यूस फ्रेश वाटर की सप्लाई बहुत ज़रूरी है इरिगेशन के लिए। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद भाखड़ा नंगल डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सतलज नदी पे बनाया गया, जो फार्मिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और ये इसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे पर्पस ये डैम्स ये सॉल्व करते हैं, जैसे इरिगेशन का, कंट्रोलिंग फ्लड का, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ब्रीडिंग फिश का, रिक्रिएशन ऑफ फैसिलिटी का, हाँ, ये सब सॉल्व करते हैं। Wonderful to know. The father of medicine, Hippocrates, told people to boil water and strain it before drinking it. Conservation of water resources. Increase in population results in water scarcity due to greater demand. If urgent steps are not taken to conserve water, most countries of the world, especially India, will face acute shortage of water. Some of the measures that can be taken for water conservation are plantation of trees and other vegetation to check runoff and let rainwater seep underground. Water harvesting should be done in both urban and rural areas to store rainwater.
Effluents should be treated before they are drained into water bodies. Sprinkler irrigation and drip irrigation should be promoted. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. This valuable resource can be conserved by plant utilization and protecting the available water sources from pollution. It is very important that we make the best of what is available to us in an economical manner. अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स कैसे कर सकते हैं। वाटर रिसोर्स जो रिसोर्स है उसको अच्छी तरीके से यूज़ करके हम लोग उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। ज़्यादातर वर्ल्ड में कंट्रीज़ यही काम कर रही है। शॉर्टेज ऑफ वाटर है, फिर भी जो वाटर है उसी को अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है। पहला क्या है, प्लांटेशन और वेजिटेशन को सही तरीके से चेक करके रेन वाटर स्ट्रिप ग्राउंड में पहुँचे, ये इसको चेक करके हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग पानी जो रेन वाटर आती है उसको अच्छे तरीके से प्लांट्स में और वेजिटेशन में पहुंचा के उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर का अच्छे से अगर जब अवेलेबल हो उसको इकट्ठा करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सही तरीके से यूज़ करना वाटर हार्वेस्टिंग होता है। तीसरा है स्प्रिंकल, मतलब कि स्प्रिंकल इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं कि कम पानी में ज़्यादा इरिगेशन कर एरिया को इरिगेट करके उसको वाटर का सही यूज़ कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं जिससे हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं। वैल्यूएबल रिसोर्स कैन बी कवर्ड बाय प्लान्ड और यूटिलाइज्ड एंड प्रोटेक्टिंग द वाटर सोर्स इन पोल्यूशन। अब सही तरीके से करें तो वाटर पोल्यूशन से भी हम लोग बच सकते हैं। इस तरह हम लोग वाटर का सही इकोनॉमिकल मैनर में यूज़ करें तो वाटर की दिक्कत नहीं आएगी। Here we end this chapter. Thank you. Hope you like this.